Hi everyone, welcome to S4 Sharnya Science classes. Today we are going to discuss about class 10 periodic classification of elements chapter. The main topic trends in modern periodic table. In the previous lessons we have learned about Dobereinius triad, Newland's law of octave, Mendeleev's periodic table and modern periodic table. Right. तो आज हम पढ़ने वाले हैं what are the main trends in modern periodic table. One by one we will learn. You can see that the first trend in modern periodic table जो बोल रही है that's about the valence electrons, right? First we have to understand what you mean by a valence electron, then only we will understand this, right? The outermost shell में जितना electrons होती है उसको हम बताती है valence electrons, right? So valence electrons means outermost shell में एक एटम की outermost shell में जितना electrons होती है उसको हम बताती है valence electrons. For example, if you are taking sodium, इसके electronic configuration है 281, then 1 is the valence electrons, right? तो इसका trend period में group में कैसे vary होती है that we can see that, right? For example, if you are taking the second period to understand how the valence electrons are varying, you can see here. If you are taking lithium, उसका atomic number है 3, beryllium 4, boron 5, carbon 6, nitrogen 7, oxygen 8, fluorine 9 and neon 10. These are the atomic number. We can write the electronic configuration 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 and 28. We have taken second period, right? तो आपने you can easily notice that इधर एक एक इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स एटॉमिक नंबर जो इंक्रीज होती जा रही है व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू right in a period, you can see that valence electrons increased by 1 unit, right? तो एक एक यूनिट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रही है, राइट? सो यू कैन सी दैट शेल नंबर जो है, नंबर ऑफ शेल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इधर हर एक जगह में शेल नंबर सिर्फ 2 ही है. शेल नंबर इज नॉट एट ऑल इंक्रीजिंग एनीवेयर, बट एक एक इलेक्ट्रॉन्स ऐड करती जा रही है, राइट? सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज इंक्रीजिंग बाय 1 यूनिट. तो वी कैन सिंपली से दैट व्हेन वी मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, राइट? तो पहले 1 to 8 तक वो जाएगा, राइट? What about in a group? Group you can see that here I have taken the first group which is actually hydrogen, lithium, sodium and potassium. उसका corresponding atomic number है 1, 3, 11 and 19, right? So if you are checking the electronic configuration, if it is 1, lithium 21, you can see that sodium 281 and potassium 2881. So here you can see that when you are going to next period, valence electrons actually you can see that will be same. outermost shell में जो electrons है वो same है, that means valence electrons it's not at all changing, वो same रहेगा. number of shells you can see that it's actually increasing. पहले एक shell था, फिर 2 हो गया, फिर 3, फिर 4, तो एक एक. so this is actually the first period, this is the second, this is the third period and fourth period. When you are moving into next period, number of shells is increasing but valence electrons will be same. So you can see that what you mean by valence electrons and what will happen when we are moving towards a period and towards a group. Now we are going to check about valency. Valency जो बोल रही है in a chemical reaction how many electrons it will lose, an element will lose, or how many electrons the element will gain to attain octet, उसको हम बताती है valency, right? So here you can see that sodium, again we are, if you are taking the example, you can see that 281, this is the electronic configuration. outermost shell में it has 1 electron, that's actually valence electron 1. to complete octet it has to lose 1 electron, तो Na will become Na plus, so it is actually losing 1 electron, तो इसका valency है +1. if you are taking chlorine you can see that the atomic number 17 है, इसके electronic configuration आएगा 287. to complete octet it has to gain 1 electron, तो chlorine की valency है -1. if you are taking potassium you can see that the electronic configuration if you are writing you can easily see that 2881 है,
तो दैट मीन्स इट हैज टू लॉस वन इलेक्ट्रॉन, देन ओनली इट विल गेट द ऑक्टेट कॉन्फिगरेशन. तो इधर भी +1 है, राइट. सो हियर इफ यू आर टेकिंग लाइक दैट, यू कैन सी दैट वैलेंसी मीन्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट विल गो लॉस और गेन टू कंप्लीट द ऑक्टेट, उसको हम बताती है वैलेंसी, राइट. सो हियर यू कैन सी दैट ये वैलेंसी को पीरियड में जाएगा और ग्रुप में जाएगा, क्या होगा, राइट. Again, I am taking the same example of second period here. Here you can see that atomic number is increased by 1 unit. Electronic configuration you have written already, right. Valence electron you can see that it is increasing by 1 unit. What about valency? Valency को क्या हो रही है? Here you can see that if you want to complete that diplet or octet, whatever it is, it has to lose 1 electron. तो लिथियम की केस में डिप्लेट है, नॉट ऑक्टेट. तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो ये +1 होगा. सॉरी. बर्लियम की केस में यू कैन सी दैट इट हैज टू लॉस 2 इलेक्ट्रॉन रादर देन गेनिंग. बाकी नहीं है तो 6 इलेक्ट्रॉन को गेन करना है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. तो ईसी 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना है, तो इट विल लॉस 2 इलेक्ट्रॉन. तो इसका वैलेंसी होगा +3 +2. एंड बोरॉन की केस में यू कैन सी दैट इट हैज टू एक्सेप्ट 5 इलेक्ट्रॉन. नहीं है तो 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना है. तो सबसे इजी 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना है, तो इसका वैलेंसी विल बी +3. कार्बन की केस में इट्स सेम. ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आइदर लॉस करो, नहीं है तो गेन करो. तो इट हैज टू लॉस और गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स. सो इट कैन आइदर लॉस और गेन 4 इलेक्ट्रॉन. तो इसका वैलेंसी होगा टेट्रा वैलेंसी और द 4 वैलेंसी, वी कैन से दैट. नाइट्रोजन की केस में क्या होती है? यू कैन सी दैट आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है. दैट मीन्स इट हैज टू नीड 3 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट. नहीं है तो 5 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना है. वेरी इजी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स कंपेयर टू लॉसिंग 5 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये गेन करेगा 3 इलेक्ट्रॉन को, इसलिए इसका वैलेंसी होगा -3. हियर ऑक्सीजन की केस में भी यू कैन सी दैट आइदर इट हैज टू एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, नहीं है तो 6 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना है. 6 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की जगह 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना ईजी है, तो इट विल एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन. तो इसका वैलेंसी होगा -2. फ्लोरीन की केस में भी 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना ईजी है, तो इट विल हैव द वैलेंसी -1. नियॉन ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है, तो नाइदर लॉस और नॉर गेन, तो इसका वैलेंसी होगा 0. तो यू कैन सी दैट वैलेंसी व्हेन वी आर मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, यू कैन सी दैट फर्स्ट इट विल इंक्रीज अप टू 4, फिर इट विल बी डिक्रीज अप टू 0. तो पहले 1 2 3 4 तक इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा 0 तक, राइट. -3 -2 -1 एंड 0, right. So this is the trends of that valency in a period, right. What about in a group? Group में top to bottom जाती है तो क्या होती है, right. So we have already discussed that. You can see that electronic configuration हमने पहले भी लिखा है. You can see that the valence electrons it's actually 1. Either you can see that हर एक केस में 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा so that it will have that octet. तो valency भी change नहीं होगा, right. So you can see that when you are moving from top to bottom, the valence electron and valency will be same. If you are taking any other group also, the same things will be there. एक ग्रुप की सारे members की valency will be same, राइट. वो वॉट एवर द ग्रुप इफ यू आर टेकिंग फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप, कोई सा भी ग्रुप आप ले लिया है तो भी आपको यू कैन सी दैट द वैलेंसी विल बी सेम हियर, राइट. Now if you are checking the atomic size, right, so or the radius of an atom क्या होगा, right. You can see that again हम एक एक एग्जाम्पल लेकर ही बता रही है so that it will be easy to understand, right. तो atomic size you can see that if you are checking a group, checking a period, you can see that atomic number increase हो रही है. atomic number increase हो रही है मतलब number of protons, atomic number की मतलब है number of proton, number of proton increase हो रही है. number of proton increase होगा that means nuclear की चार्ज, न्यूक्लियस के अंदर की चार्ज इंक्रीज होगा, राइट. न्यूक्लियस के अंदर चार्ज इंक्रीज हो रही है, शेल नंबर इधर चेंज नहीं हो रही है. सेम शेल में इन अ पीरियड एक्चुअली द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द सेम शेल, राइट. तो दैट मीन्स यू कैन सी दैट शेल की नंबर इधर चेंज नहीं हो रही है, बट यू कैन सी दैट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रही है, सेल की नंबर चेंज नहीं हो रही, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रही है. तो वेयरएवर इट इज, ये न्यूक्लियस को आपको इधर देख ले, ये न्यूक्लियस है
तो जो इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर रही है वो सेम शेल में, पहले एक था फिर 2 हो गया फिर 3 हो गया, सेम शेल में ऐड करती जा रही है। तो इधर भी आपको उसके हिसाब से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रही है, तो इसलिए अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, साइज डिक्रीज होगा, राइट। इधर इफ शेल नंबर इंक्रीज हो गया तो यू कैन से दैट एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, बट यू कैन सी हियर इधर शेल नंबर इज एक्चुअली सेम, शेल की नंबर बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है, सेम शेल में इलेक्ट्रॉन्स आर एडिंग, द सेम टाइम प्रोटॉन्स इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, प्रोटॉन इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रही है, बट इलेक्ट्रॉन्स आर एडिंग इन द सेम शेल। इसकी वजह से यू कैन सी दैट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, दैट मीन्स व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एटॉमिक साइज घटती है, कम होती है। वाई? यू कैन सी दैट व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, नंबर ऑफ प्रोटॉन increases, nuclear charge increases, so you can see that attraction increases, electrons will be pulled closer to the nucleus, इसलिए size decreases। तो when you are writing just कनेक्ट करके लिखना है, राइट। सो अगेन वी आर गोइंग टू चेक दैट व्हाट विल हैपन इन अ ग्रुप, ग्रुप में क्या होगा, राइट। ग्रुप में यू कैन सी दैट हियर ऑल्सो यू कैन सी दैट एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रही है, एक नहीं है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, पहले 1 था फिर 3, 11, 19, तो एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज हो रही है, सेम टाइम में ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होगा, बट एक मेन प्रॉब्लम है, इधर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रही है, तो आपका न्यूक्लियस इधर है, पहले न्यूक्लियन इलेक्ट्रॉन्स इधर ऐड कर रही थी, सेकेंड न्यूट्रॉन आपको इधर ऐड कर रही है, थर्ड इधर, राइट। यू कैन सी दैट हर एक पीरियड में जाती है, एक एक शेल इंक्रीज हो रही है, तो दूर दूर जा रही है, तो ऑटोमेटिकली शेल इंक्रीज हो रही है, यू कैन सी दैट साइज विल ऑल्सो इंक्रीज, right। तो in a group you can see that electrons की, that means proton number increases but the same time shell number is also increases, right। number of shell increases, इसलिए उसका distance increases from the nucleus, इसकी वजह से size increases। तो you can see that if you are checking in a पीरियड में सबसे ज़्यादा साइज वाली होगा फर्स्ट ग्रुप वाला, फिर इधर से आपको एलिमेंट्स में एक एक ग्रुप में जाएगा, 18 ग्रुप तक पहुंचाएगा। यू कैन सी दैट सबसे कम साइज वाली विल बी देयर देन 17th ग्रुप, राइट। उसका भी एक रीज़न है, 18th नोबल गैस को हम कंसिडर नहीं करती है, राइट। तो सबसे ज़्यादा साइज वाली विल बी आल्कली मेटल्स, और सबसे कम साइज वाला विल बी दैट हैलोजेंस। ऐसे इफ़ यू आर चेकिंग द ग्रुप में सबसे ऊपर वाला सबसे कम साइज की, सबसे नीचे वाला विल बी द लार्जेस्ट साइज की, क्योंकि शेल नंबर इंक्रीजेस, राइट। तो यू कैन ईजली से दैट इन ए पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा साइज विल बी आल्कली मेटल्स। आल्कली मेटल में कौन है? आल्कली मेटल में सबसे नीचे वाला, राइट। तो सीशियम विल बी दैट हाईएस्ट साइज, लार्जेस्ट साइज वाला सीशियम विल बी देयर, राइट। ऐसे सबसे कम साइज की होगा हमारा हैलोजेंस में कौन सी होगा? सबसे ऊपर वाला, दैट्स एक्चुअली द फ्लोरीन विल बी द लोवेस्ट साइज। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेटालिक प्रॉपर्टी। मेटल जो बनाने वाली प्रॉपर्टी हमने बोला था, जितना ईजिली वो कैटियन बन सकती है, दैट मीन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन आयोन्स बन सकती है, उसको हम बताती है मेटल्स, राइट। तो इसलिए पॉजिटिवली चार्ज्ड आयोन्स बना रही है, इसलिए इसको बोलती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, राइट। तो उसको क्या होगा? यू कैन सी दैट इन अ पीरियड इफ यू आर चेकिंग ये Na+, Mg2+, Al3+, right, you can see that Si4+, or right, इधर P की you can see that -3 होगा, सल्फर की -2, क्लोरीन -1 एंड इसका 0, वैलेंसी ऐसे जाती है। तो हियर यू कैन ईजली सी दैट इधर जो ईजिली इलेक्ट्रॉन को लॉस कर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयोन्स बनती है, वो ये वाला है, राइट। सो दैट मीन्स सबसे लेफ्ट वाला। सो हियर यू कैन सी दैट दीज ऑल आर कंसिडर्ड एज मेटल्स, राइट। और सबसे इलेक्ट्रॉन को गेन कर राइट, सो यू कैन सी दैट नेगेटिवली चार्ज्ड एनियन बनने की टेंडेंसी सबसे राइट साइड में वाला के, सो दे आर कंसिडर्ड एज नॉन मेटल। जिसके बीच में यू कैन सी दैट नाइदर लॉस और नॉर गेन, यू कैन सी दैट मोस्टली शेयर करने वाला, जिसको हम मेटलॉइड, जो मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी दिखाती है, उसको हम मेटलॉइड में कंसिडर करती है। सो मेटालिक प्रॉपर्टी इफ यू आर मूविंग इन अ पीरियड इट डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट,
वो मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होगा, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होगा, राइट। सो द सेम वे यू कैन सी दैट हमने ऑलरेडी बता दिया था, जब नीचे जाती है साइज इंक्रीज होती है, साइज इंक्रीज होती है उसमें से इलेक्ट्रॉन को इजिली लॉस कर सकती है। न्यूक्लियस की इधर यू कैन सी दैट एक एक शेल बढ़ती जा रही है, डिस्टेंस बढ़ेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ईजी है, तो दैट मीन्स इट विल बिकम वेरी ईजिली पॉजिटिवली चार्ज, राइट। तो मेटालिक प्रॉपर्टी नीचे जाएगा तो इंक्रीज हो जाती है, राइट। सो यू कैन सी दैट इन ए ग्रुप व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम, राइट, तो मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेस, राइट। सो हियर ऑल्सो यू कैन सी दैट हमें एक एग्जाम्पल ले लिया है, पहले वाले यू कैन सी दैट व्हेन यू आर गोइंग डाउन द मेटालिक प्रॉपर्टी विल इंक्रीज। सो दैट मीन्स इफ यू आर टेकिंग द फर्स्ट ग्रुप लिथियम, राइट, सोडियम, you can see that lithium, sodium, potassium, right, rubidium, cesium वगैरह आप देख रही है फर्स्ट ग्रुप है, these all are metals, right। तो हमने लेफ्ट टू राइट जा रही है, तो हियर ये विल बी, ये लेफ्ट साइड वाला है फर्स्ट ग्रुप, राइट। सो फर्स्ट ग्रुप में लेफ्ट साइड है, ये सारे मेटल है, इसमें से सबसे कौन सी ज्यादा मेटालिक होगा, दैट विल बी सीशियम एंड रुबीडियम विल बी दैट सबसे ज्यादा मेटालिक, बिकॉज इसका साइज बहुत ज्यादा है, तो इसलिए ये ईजिली लोस इलेक्ट्रॉन एंड इट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड कैटियन। इसलिए फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स में, दैट मींस मेटल्स में सबसे ज्यादा मेटालिक विल बी सीशियम। Now the non-metallic properties which is just opposite to that, you can see that ये सारा metals है तो ये सारा non-metals है। When you are moving left to right in a period, the non-metallic property increases, right। तो metallic property decrease होती है तो gain करने वाली property increase होती है, तो non-metallic property increases। ऐसे सेम when you are going down the group, size increase होती है, size increase होती है तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाली प्रॉपर्टी इंक्रीज होगा, बट इलेक्ट्रॉन गेन करने वाली प्रॉपर्टी डिक्रीज होगा, तो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीजेस, राइट। सो यू कैन सी दैट, सो इसको गेन करने वाला तो नेगेटिव बनने वाला, तो इसलिए इसको बताती है इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, right। So these all are actually the trends in a periodic table. I hope you have a clear idea, right। Now one more thing we have to understand here, what is that actually the significance of periods and groups, right। For example, if आपको एक क्वेश्चन ऐसे आ रही है, एक एलिमेंट X जिसका एटॉमिक नंबर है 17, right, इसका पोजीशन बताओ, right। How can you say that? First what you have to write? You have to write the electronic configuration, electronic configuration। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमको सिर्फ एटॉमिक नंबर चाहिए, बिकॉज जितना प्रोटॉन्स होती है उतना इलेक्ट्रॉन्स होती है। सो यू कैन ईजिली राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 and 7, राइट। सो हियर यू कैन सी दैट हमने अभी अभी लर्न किया है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, राइट, विल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ दैट ग्रुप, राइट। सो जितना आपने अभी अभी लर्न किया है, यू कैन सी हियर एक ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल बी सेम, राइट। तो हियर ऑल्सो यू कैन सी दैट आपने एक ग्रुप के बारे में लर्न कर रही है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल बी सेम, और एक एक ग्रुप पीरियड में जाएगा, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो जाएगा, राइट। सो द सेम वे इफ यू आर कंसिडरिंग हियर, यू कैन सी दैट आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखा है तो हियर दैट विल इंडिकेट द नंबर ऑफ दैट ग्रुप, राइट। सो आपको यू कैन सी दैट इफ यू आर टेकिंग द फर्स्ट ग्रुप, आई विल टेक दैट, you can see that lithium, right, and you can see that sodium and potassium. If you are writing the atomic number, it will be 3, 11 and 19. इसके electronic configuration होगा 2, 1 and 2, 8, 1 and you can see that 2, 8, 8, 1. तो here ये second period है, ये third period है, ये fourth period है. How can you say that? Either count the number of shells, right? तो number of shells will give you the number of periods, right? The same way if you are counting, you can see that lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen. So here like that it will go. Here lithium की case में you can see that it will be 2, 1, beryllium 2, 2 and boron 2, 3, कार्बन 2, 4 एंड नाइट्रोजन 2, 5 लाइक दैट इट विल गो. तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंडिकेट करती है उसका ग्रुप. बट एक ही फर्क है, यू हैव टू रिमेंबर द फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 and 2 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द ग्रुप नंबर विल बी सेम. बट 3
4, 5, 6 वगैरह आ रही है, then you have to add 10 to that, then only you will get the group number. That means आपका valence electron 3 है, 3 plus 10, this will be 13th group, right? So ऐसे है, तो अभी इसी केस में क्या होगा? Here you can see that the valence electrons will be 7, valence electrons which is actually 7. तो आपको क्या करना है? 3 के ऊपर है, that means 2 तक सेम होगा, 2 से ज़्यादा है आपको 10 ऐड करना है. सो जस्ट ऐड 10, यू विल गेट, इट विल बी 17th ग्रुप, राइट. तो आपको पीरियड मिल गई. पीरियड कैसे? नंबर ऑफ शेल्स विल गिव यू द पीरियड. तो हियर यू कैन सी दैट पीरियड विल बी 3rd पीरियड एंड 17th ग्रुप. 3rd पीरियड में 17th ग्रुप, एटॉमिक नंबर 17 है, तो ये होगा आपका क्लोरीन. क्योंकि हमने ऑलरेडी लर्न किया है हाउ टू अंडरस्टैंड दैट मिनी पीरियोडिक टेबल. आई होप यू रिमेंबर. H. Haley, Babe, Kano, Funny, Namak, Alsi, Pascal, Ka. So you can see that 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. If you learn this mini periodic table, you can easily find out whatever the atomic number और उसको कैसे लिखना है. The same way, one more example I will show you. If an element X जिसका atomic number है 13, इसका पोजिशन इन अ पीरियोडिक टेबल बताओ. पोजिशन इन पीरियोडिक टेबल, दैट मीन्स आपको कौन सी ग्रुप में कौन सी पीरियड में बताना है. व्हाट यू हैव टू राइट? यू हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 13, सो यू कैन ईजिली राइट दैट 2, 8, 10 हो गया. बाकी रिमाइनिंग यू कैन सी दैट 3, राइट. तो नंबर ऑफ शेल्स काउंट करो. नंबर ऑफ शेल्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ द पीरियड. तो आपका नंबर ऑफ शेल 3 है, तो इट विल बी इन द 3rd पीरियड, राइट. नाउ नेक्स्ट यू हैव टू व्हाट यू हैव टू डू? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 की ज्यादा है, तो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10 करना है. 2 तक है तो सेम लेना है, तो दैट मीन्स 13th ग्रुप, राइट. सो 13th ग्रुप में 3rd पीरियड में यू कैन चेक दैट 13th ग्रुप, राइट. 13th ग्रुप में, 13th ग्रुप मीन्स ये ग्रुप, राइट. 13th ग्रुप में 3rd पीरियड में ये 1st पीरियड, ये 2nd पीरियड, ये 3rd पीरियड, तो ये है एल्यूमिनियम, राइट. सो यू कैन ईजिली राइट द नेम ऑफ दैट एलिमेंट ऑल्सो, एल्यूमिनियम. ऐसे कोई सा भी एलिमेंट आप फाइंड आउट कर सकते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट क्लियरली, द कंसेप्ट ऑफ पीरियड एंड ग्रुप ऑल्सो, एंड द ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑल्सो. इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज like, share and support me, and please share with your friends also. Thank you.